Okay, we continue with the next part, which is relation between lattice constant, which is the edge length and radius of an atom in different crystal. Relation between the edge length and radius. How is the edge length related, or what is the parameter we use for edge length? ABC. ABC. ठीक है, but अगर मैं एक perfect cube consider करूं, then all the edge lengths are Equal. equal. So I will consider my edge length to be represented by letter A, and the radius of an atom will be represented by R. So basically हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, A और R को relate करने वाले हैं. किस किस के लिए? We will relate it for the three different types of unit cells, which are SCC, BCC, FCC. BCC and FCC. ठीक है, so let's start with the simplest one, SCC. So SCC is a unit cell in which the atoms are present only at corners. And if the atoms are present at the corners, then ये 8 corners के ऊपर present होंगे, हाँ कि नहीं? Yes, sir. And for a close packing, I can say that along this edge length, ये वाला जो edge length है, the two atoms would be actually touching each other, कुछ ऐसे, हाँ कि नहीं? जो मॉडल बताया था उसमें सॉलिड्स है, मतलब ये मेरा सेंटर ऑफ द स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर का सेंटर है. इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये बेसिकली क्या लेंथ मिल जाएगा मुझे? रेडियस ऑफ द एटम. नहीं, यहां से यहां Cube तक length. क्यूब का लेंथ, विच इज कॉल्ड एज लेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय A. बराबर. एंड यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर, and this is R. also the radius of the sphere, and this entire length is A. So what is the relation between A and R? A is equal to 2R. A is equal to Yes. 2R. खत्म. ठीक है, तो आपको वो लेंथ लेना है जहां पर the atoms are touching each other or the atoms are closely present or closely packed in a particular unit cell of a solid. तो SCC में obviously that is along the edge length, the two atoms present at the corners would be touching or they will be closely packed. समझा? ठीक है, तो हम इसको अगर मैग्नीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ना. दिस स्फीयर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बिगर वन, दिस स्फीयर एट द अनदर कॉर्नर इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर स्फीयर, और इन दोनों स्फीयर्स का जो सेंटर है वो आपका एज लेंथ दे रहा है. एम आई क्लियर ऑन दैट? हाँ. फाइन. So A is equal to 2R, that is the relation between A and R, the relation between the edge length and the radius of the atom. Very, very important. ठीक है, अब नेक्स्ट FCC. मुझे बताओ FCC में the atoms are present at Corner plus the face of Face center. corner plus face centers. अब मुझे एक ऐसा लेंथ बताओ जहां पर the atoms would be touching each other. Diagonal. Diagonal of what? One face. Perfect. Face diagonal. Superb. मतलब यहां पर देखो the atoms are present at all the corners. तो अगर मैं फ्रंट फेस की वाली बात करूं तो ये सारे कॉर्नर्स पे दिखेगा और फेस के सेंटर पे भी दिखेगा, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि एक ऐसा लेंथ बताओ जहां पर एटम एक दूसरे को टच कर रहा होगा, तो वो फेस का डायगोनल होगा. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yeah. ठीक है, अब अगर मुझे ये फेस डायगोनल का लेंथ पता है तो मैं ए और आर को रिलेट कर सकता हूं. Yes. और फेस डायगोनल का लेंथ पता करने के लिए जस्ट अप्लाई द सिंपल पाइथागोरस थ्योरम. दिस इज योर लेंथ ए, दिस इज आल्सो योर लेंथ ए, सो दिस इज बेसिकली द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. एंड व्हाट इज डायगोनल का लेंथ? रूट 2a. मतलब सिंपली वी नाउ नो दैट द फेस डायगोनल इज, फेस डायगोनल यानी FD लिखा है, चलेगा ना? हाँ. इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स द एज लेंथ, हाँ कि नहीं? Yeah. और along the face diagonal I have the atom present at the
at the Corners and corner, again at the corner and at the center. Center. center of the face. ये मैंने इस लाइन को खाली यहाँ पे सेपरेटली बनाया, समझा? Yeah. अब मुझे बताओ, along this face diagonal, what is the length in terms of r? 4R. 4r. बराबर, because it's a combination of two spheres at the corner and one sphere at the center. So face diagonal का length is basically 4r. हाँ कि नहीं? Yeah. So 4r is equal to root 2a is the relation between a and r in a FCC. समझा? इसको मैं a equal to 2 root 2 r भी लिख सकता हूं. If I divide the root 2 with 4, चलेगा ना? Yes, sir. A Yeah. is equal to 2 root 2 r. समझा? ठीक Yeah. है. अब Yes. third, body centered cubic is a unit cell in which the atoms are present at the Body center and Body Body center center plus and body corners. center. बॉडी सेंटर एंड द कॉर्नर. Corner. ठीक है, तो ये बॉडी का सेंटर है. अब मुझे बताओ एक ऐसा लेंथ जहां पर BCC में एटम्स एक दूसरे को टच कर रहा है. diagonal of Diagonal of the cube. डायगोनल ऑफ द क्यूब, जिसको हम बॉडी का डायगोनल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो Body ये diagonal. वाला कॉर्नर, उसके ऑपोजिट वाला कॉर्नर, ये वाला, और द सेंटर ऑफ द बॉडी. बराबर. तो अब अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये बन जाता है आपका क्या? body diagonal. बॉडी डायगोनल. ठीक है. लेट्स से दिस बॉडी डायगोनल इज रिप्रेजेंटेड बाय AB. ठीक है, और ये पॉइंट को मैं C ले लेता हूं. अब इसका लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है, तो सिंपल मैथ अप्लाई करूंगा. आई विल Yes. मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू A, B एंड C. Yeah. नाउ डू आई नो द BC का लेंथ? BC is A and AC is root 2A. करेक्ट. BC आपका A है and AC is the face diagonal only, ना? Yes. And face diagonal we have already said it's root 2A. हाँ. तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है जिसमें ये A है, ये रूट 2A है. तो इसका लेंथ हमें फाइंड करना है. अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम. 3a square. 3. 3A. 3a स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 3a Root आ 3a. जाएगा. मतलब BCC में along the body diagonal the atoms touch. Along the body diagonal the atoms touch and its length is equal to Root 3A. Root 3a. root Root 3a. 3a. And along this body diagonal also the atom is present at the Corners and Corners body center. and Body at the center. body Center. center. अब similar to FCC, ये जो है आपका फेस डायगोनल रिप्रेजेंट करता है और ये जो है वो बॉडी डायगोनल रिप्रेजेंट करता है. लेकिन अगर मैं R के टर्म्स में देखूं तो दोनों सेम ही आने वाला है ना. हाँ. मतलब इवन दिस इज इक्वल टू 4R. अरे yes or no? Yeah. Yes. ठीक है, मतलब द एज लेंथ इन अ BCC is equal to 4R by root 3. This is the relation between A and R in BCC. Very, very important. समझा? Yes, Yeah. sir. ठीक है, तो सिंपल फंडा है. What you have to do is find out a length along which the atoms are touching each other. In FCC, the atoms touch along the Face diagonal. ना in SCC. Edge length. हाँ, एक बार फिर से. In SCC, the atoms touch along the edge length. चाहिए तो आप अपने नोट्स में ये लिखो. SCC के वहां पर the atoms touch along the edge length. उससे आपको A और R का रिलेशन आराम से मिल जाएगा and you'll never ever forget. (23) page number. Then in FCC the atoms touch along the
edge length, Phase diagonal. अरे Phase भाई diagonal. FCC Phase diagonal. Phase diagonal. Phase phase diagonal. diagonal, and in BCC the atoms touch along the Body Body diagonal. diagonal. body diagonal. So just remember the phase diagonal is root 2a and the body diagonal is root 3a and both are equal to 4r. So आपको a और r का रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है? Now just remember this, ये हमको आगे यूज होने वाला है. Now moving to the very important part. This is all about understanding, but finally understand करने के बाद जो conclusion यहाँ से हम derive करने वाले ना, वो आपके लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. कैसे आया समझा दूंगा, समझा तो भी ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक. But if you just concentrate, you will understand everything. So the topic is location of tetrahedral void and octahedral void in CCP or FCC lattice. Basically, when we talked about TV and OV, they are formed when there is placement of the third layer onto the second layer. And Yes. third layer का placement में दो cases था. Case 1, the third layer is placed such that it covers the TV. triangular voids. TV. In that, not triangular, tetrahedral voids. Third layer की बात कर रहा हूँ, third. The third layer is placed in such a way that it covers the TV or OV. जब वो TV cover करता है, तो it gives what three-dimensional packing? When it covers TV, it gives which three-dimensional packing? AB. AB, which was named as HCP. Closed property. and second case जब third layer को place करते हैं covering the OVs, then we get ABC packing. ABC, which was called as CCP or FCC. Correct? Yes. ठीक है. अब SCC और BCC में there is no TV or OV formed. That is the reason we are talking about the TV and OV only in FCC lattice. Is the reason clear? So can you repeat? SCC सिंपल क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में टीवी और ओवीज बनते ही नहीं है. मतलब those voids are not present in the SCC or BCC. They are formed only in case of FCC when we get ABC type of three-dimensional packing. ठीक है. तो बेसिकली जो टीवी और ओवी है वो HCP और FCC में बनते हैं, लेकिन HCP को हम नहीं डिस्कस करने वाले. We are talking only about FCC with regards to syllabus. Fine. Yes. Okay. So now tell me, tetrahedral void was formed by how many atoms? 6. Tetrahedral void was not formed by 6 Four. atoms. Four. It was formed by 4 atoms. 3 atoms were present in the same layer. Yes. And one was blocking the. And 1 atom was placed in such a way that it is occupying this particular empty space formed by the 3 layers. हाँ कि नहीं? Yes. ठीक है. तो इसको मैं 3D में बना रहा हूं जहां पर 2 एटम सामने की तरफ दिखेंगे और जो पीछे वाला एटम है वो मैंने एक डॉटेड लाइन से किया हुआ है. चलेगा? हाँ. ठीक है. अब 4th atom would be placed at the center of this triangular void. ठीक है. तो वैसे तो ये ऊपर की तरफ प्लेस होगा, मैं इसको जस्ट समझने के लिए थोड़े डिस्टेंस से प्लेस कर रहा हूं, कुछ ऐसा. तो ये इसके ऊपर बैठ जाएगा एंड दैट विल गिव राइज टू द टीवी. अब जैसे ये ऊपर से आ रहा है, वैसे नीचे से भी अगर एटम आएगा वो भी आपको एक टीवी बना के देगा. हाँ कि नहीं? Yeah. तो 2 टीवीज बनेंगे. ये पहली बात. ठीक है. नाउ इफ आई जॉइन द centers of the 3 spheres, what I get over here? Triangle. And then इसका सेंटर अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करूं तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा? Pyramid. Pyramidal. पिरामिड नहीं बोलते इसको, क्या बोलना है?
Tetrahedron. टेट्राहेड्रन। क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रन, बराबर, बिकॉज इसके 4 फेसेस होंगे ना, हाँ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, so TV is formed by 4 atoms, hence its coordination number is 4. सही? Yes. ठीक है, अब सिमिलरली OV is formed by 6 atoms. 6 atoms, and they were formed in such a way that they were a superimposition of 2 triangular voids which had the Yes. apex Opposite to each other. opposite to each other. Superb. तो मैंने इसका बनाने का एक सिंपल सा ट्रिक बताया था कि आप यहाँ पर एक ट्राइंगुलर वॉइड बना दो और दूसरा ट्राइंगुलर वॉइड ऐसा बना दो, तो इसका जो बीच वाला स्पेस है वो आपका ओवी होता है, हाँ कि नहीं? Yes. ठीक है, अब इसको लेयर बाय लेयर अगर समझे तो जो नीचे वाला लेयर है उसमें 3 एटम्स रहते हैं, Yes. ऐसा, और ऊपर वाला लेयर रहता है उसमें भी 3 एटम्स रहता है, बट नीचे वाले लेयर में एपेक्स पीछे की तरफ जा रहा है, हाँ कि Yes. नहीं? तो हाँ। ऊपर के लेयर में एपेक्स आगे की तरफ आएगा। आपकी तरफ आएगा, आगे। आगे की तरफ, मतलब उसमें एक एटम आगे रहेगा और 2 एटम पीछे रहेंगे, कुछ ऐसे। Yes. ठीक है, ये हाफ बनाने का रीजन है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट द एटम्स आर बिहाइंड, समझा? Yeah. Yes. Yeah. ठीक है, तो ये चीजें हम कर चुके हैं, वापस मैं बता रहा हूं आपको, खाली अलग तरीके से। तो अब सिमिलरली यहाँ पर इफ आई जॉइन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, आई गेट अ ट्राइंगल विद द एपेक्स अप, एंड इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो आई गेट अनदर ट्राइंगल विद द एपेक्स Down. डाउन और Down. फेसिंग यू। सही है? Yeah. और जब मैं यहाँ पर इनको ज्वाइन करता हूं तो आई गेट Headron. octahedron. That's how we had named this void as a octahedral Headron void void. with the coordination number equal to 6. 6. Are you clear with this? Yes. हाँ. Sir. तो बेसिकली ये टेट्राहेड्रन का जो सेंटर है वो आपका टीवी होता है और ऑक्टाहेड्रन का जो सेंटर है वो आपका ओवी होता है। ठीक है, Yes, sir. so with regards to this we will find the location of TV and OV in CCP or FCC lattice. तो अब यहाँ पर let's understand with this cube. So FCC आपका basically एक unit cell है which is a cubic unit cell with atoms at the corner and at the face center, right? Yes, sir. ठीक है, अब मैं सारे एटम्स नहीं बनाऊंगा, मैं वही एटम्स बनाऊंगा जो टीवी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई कंसिडर द एटम एट दिस फेस, ये साइड वाला फेस, हाँ ये वाला, समझ रहे हैं ना, ये साइड का फेस। हाँ. हाँ. ठीक है, फिर ऊपर वाला फेस का फेस सेंटर पे एटम रहेगा और पीछे वाला फेस का सेंटर का एटम रहेगा। ठीक है, मैंने 3 एटम्स बनाए, कौन कौन सा? लेफ्ट वाला फेस, पीछे वाला फेस और ऊपर वाला फेस, मतलब इस कॉर्नर को ज्वाइन करने वाले 3 फेसेस के मैंने फेस सेंटर एटम्स बनाए, समझा? हाँ. Yes, sir. ठीक है, अब ये 3 फेस सेंटर एटम्स बेसिकली इसके सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, व्हाट आई गेट? Triangle. Tetrahedron. ट्राइंगल। ट्राइंगल, ये मेरे Right 3 angle एटम्स triangle. बना रहे हैं जो एक ट्राइंगुलर प्लेन में है, बराबर। Yeah. Yes, Yeah. sir. अब अगर मैं इस कॉर्नर पे चौथे एटम को कंसिडर करूं and if I join the center of this particular corner to the 3 atoms, what I get? क्या मिला? Tetrahedron. Tetrahedron. टेट्राहेड्रन मिला। एग्जैक्टली यही चीज है जो मैंने यहाँ बताया, 3 एटम एक प्लेन में और एक उसके ऊपर। वैसे ही एफसीसी में टीवी बनता कहां पर है? देखो, 3 फेस सेंटर के एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करके आई गेट अ ट्राइंगल, एंड
उसका कॉर्नर का जो एटम है वो फोर्थ एटम है जो उसके ऊपर प्लेस हो रहा होगा. तो when this Yes. fourth atom is superimposed on the 3 atoms in one layer, it actually generates a Tetrahedron. TV. tetrahedral void which will be somewhere at the center of this tetrahedron. है ना, उसको एक अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूं कहीं पे, समवेयर हियर. ये ग्रीन जो है वो आपका क्या है? TV. TV. टीवी. सुपर. ग्रीन क्या है एवरीवन? ग्रीन क्या है? टीवी. TV. अब जैसा यहां पर ये टीवी बना है वैसे ही इसके ऑपोजिट कॉर्नर पे भी एक टीवी बनेगा. Yes. Yes. हाँ. इनफैक्ट हर कॉर्नर पे अगर मैं इस तरह से ज्वाइनिंग करूं तो मुझे एक एक टीवी मिलेगा. हाँ. Yes. अब सुनो ध्यान से, वापस बताता हूं. ठीक है. सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट, मैं इस फेस सेंटर का एटम कंसिडर कर रहा हूं, साइड वाले फेस के सेंटर का एटम, और ये फ्रंट वाले फेस के सेंटर वाला एटम. क्या बनाएगा ये? Triangle. Same. Tetrahedron. ट्राइंगल. और इन तीनों फेस को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्नर है वो ये वाला है, हाँ कि नहीं? हाँ. हाँ. Yes. तो अब अगर मैं ये कॉर्नर एटम को इन 3 फेस सेंटर एटम से ज्वाइन करवा दूं तो अगेन मुझे टेट्राहेड्रन मिलेगा. टेट्राहेड्रन मिलेगा, और उसका जो सेंटर है वो मेरा TV होगा. टीवी हो जाएगा. कहीं पे कुछ यहाँ पर समझा कि नहीं? हाँ. Yes, sir. दिस इज अनदर टीवी. बराबर. अब ध्यान से देखो तो ये जो टीवीज है दोनों, दे आर प्रेजेंट अलोंग व्हाट? अलोंग व्हाट? Body diagonal. Body diagonal. बॉडी डायगोनल. सुपर. अब टर्म समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट लिया. बराबर. हाँ. हाँ. Yes. So can I now conclude that tetrahedral voids in FCC are located along Body diagonal. The body diagonal. the body diagonal? Everyone, tetrahedral voids in FCC are located along the Body diagonal. body diagonal. और एक बॉडी डायगोनल पे कितने टीवीज बन रहे हैं? 2. दो. 2. और एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं? 2. 2. 2 2. ही बॉडी डायगोनल होते हैं. 4. ये. हर 2 कॉर्नर को ज्वाइन करके एक बॉडी डायगोनल बनता है, हर 2 कॉर्नर पे. 4. तो कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं? 4. 5. 4. ठीक है. तो एक बॉडी डायगोनल के अलोंग, एवरीवन, एक बॉडी डायगोनल के अलोंग कितने टीवीज? 2 TV. 2. 2 टीवी. 2. ठीक है. कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं? 4. 2. 4. 4. तो कितने टीवीज होते हैं? 8. 8. 8. 8. समझा? हाँ. क्लियर है? ठीक है. अब मुझे बताओ, इन एफसीसी हाउ मेनी एटम्स डू वी हैव पर यूनिट सेल? 4. 4 एटम्स होते हैं, हाँ. बाकी नहीं? 1 2 का 4. Yeah. एफसीसी में द जेड का वैल्यू इज 4. मतलब 4 एटम्स एफसीसी में 8 टीवीज के रिलेटेड हो गया. हाँ. हाँ. एवरीवन, 4 एटम्स इज इक्विवेलेंट टू 8 8 टीवीज. TVs. मतलब पर एटम कितने टीवीज हुए? 2. 2 TV. 2. 2. डू यू ऑल अग्री? Yeah. मतलब अगर मेरा एफसीसी है तो हर एटम के पीछे 2 टीवीज जनरेट होते हैं. हर एटम के पीछे 2 TV. 2 TV. 2 टीवी जनरेट होते हैं. तो अगर मेरे पास 100 एटम्स है तो आपसे पूछा कितने टीवीज होंगे? 50. 200. 200 सॉरी. 50 कैसे? 200. ठीक है. मतलब फॉर एवरी एटम देयर आर 2 टीवीज. हेंस इफ देयर आर n एटम्स, द नंबर ऑफ टीवीज आर 2. 2 TN. 2n. 2n. अगर n एटम्स है तो नंबर ऑफ टीवीज आर 2n. 2N. बराबर. तो जो डायग्राम हमने यहां पर देखा है ना, तो आपके बुक में वहां पर लिखा हुआ है, देखो, नंबर ऑफ टीवीज इक्वल टू 2n. अब उसका मतलब आपको समझा होगा.
हेलो, सर किधर है? ये ऐसा वाला डायग्राम जहां पर दिया है ना टेट्राहेड्रन और ऑक्टाहेड्रन का, पेज नंबर बताना पड़ेगा तो तुम्हें। एनएनडी के बाद है। नहीं नहीं, हाँ मिल गया पेज 20 पहले वाला पार्ट है ना भाई। पेज नंबर बोलो 20, 20 पेज नंबर 20। नंबर ऑफ टीवीज जनरेटेड कितना हो गया? 2n। क्लियर है ये? इज दिस जस्टिफाइड? या Yeah. स्वयं कंफ्यूज्ड? अरे पेज नंबर ही नहीं मिल रहा। 20 बोला ना, पेज नंबर 20, 20। हाँ हाँ ऊपर दिख 20 गया 20 कळत नाही काय तुला? हाँ हाँ मेरा लग। ओके गुड, फाइन विद दिस। एक बार फिर से क्विक रिवीजन। TVs are formed by 4 atoms. So in FCC, a TV can be formed by combination of 3 face-centered atoms and 1 corner. Corner. corner atom. So that center of the tetrahedron is basically the body diagonal का length. मतलब the center of the tetrahedron is along the body diagonal. सेम वे आपका ऑपोजिट वाले कॉर्नर पे भी एक टीवी जनरेट होगा। मतलब टीवीज बेसिकली एफसीसी में आर लोकेटेड अलोंग द बॉडी डायगोनल, एंड फॉर एवरी बॉडी डायगोनल देयर आर 2 टीवीज जनरेटेड and 4 body diagonals are there, so we have 8 TVs in FCC. Yeah. Then we know that FCC में 4 एटम होते हैं, तो मैंने बोला 4 एटम से 8 TVs रिलेटेड है, तो ये हर एटम के पीछे कितने TVs जनरेट होंगे? 2 2. And that's how we concluded number of TVs generated in FCC will be equal to twice the number of atoms. 100 एटम है तो 200 TVs होंगे। क्लियर? हाँ ठीक है, अब ओवीज को ध्यान से समझो। ओवीज में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्राइंगल्स विथ एपेक्स ऑपोजिट टू ईच अदर। अरे हाँ कि नहीं? या Yes, sir. ठीक है, तो एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा है। अगर मैं इसको सुपर इम्पोज कराऊं तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो Yeah. ये मेरा जो 4 एटम्स है वो बेसिकली मैं एक प्लेन में कंसिडर करूं तो आई विल गेट अ Square. Square. स्क्वायर। तो उसको मैं कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं विथ 4 एटम्स। कौन कौन से? 1 2 3 4। नीचे वाले के 2 आगे वाले एटम्स और ऊपर वाले के 2 पीछे वाले. पीछे वाले एटम्स। सही है एवरीवन? हाँ Yes. अब ये वाला जो एटम है वो पीछे जा रहा है नीचे वाले लेयर का, हाँ. तो वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। और ये वाले लेयर का एटम जो है वो आगे आ रहा है. आगे आ रहा है, मतलब उसको मैं ऊपर विजुअलाइज कर सकता हूँ। Yes, sir. एवरीवन एक बार फिर से, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम कौन कौन सा? एक बार फिर से 1 2 3 and 4. So this will represent the 4 atoms. 1 2 3 4 1 2 3 4 मिला? ठीक है, Yes. फिर पांचवा एटम ऊपर की तरफ दिख रहा है और छठा एटम पीछे की तरफ दिख रहा है। तो ऊपर वाला एटम मैंने यहाँ रखा और पीछे वाला एटम यहाँ रखा। ओके, या हाँ. Yes, sir. अब जब मैं ये पांचवे एटम को चारों एटम से मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर Tetrahedron. एक टेट्राहेड्रन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ कि नहीं? हाँ। हाँ. छठे एटम को 4 से मिलाओ तो और एक टेट्राहेड्रन मिलेगा। That's how we get the shape Octahedron. of octahedron, and that's why this void is called Octahedral. Octahedral. octahedral void, because 8 faces बनेंगे। Yes. प्रिशा, getting it? So can you explain it? Okay. देखो मस्त मैंने नंबरिंग किया है, वापस नंबर करता हूँ आपके लिए। जो 4 एटम्स है ना, they are basically visualized in the same plane. So this is atom number 1 2 which are behind, and these are atom number 3 4 which are front. Okay, Yes. so those 4 atoms I have visualized
wherein if I join the centers I will get a square. मिल रहा है कि नहीं square? देखो 1 2 3 4, Yes. ठीक है। फिर जो एक एटम है ऊपर वाले लेयर का वो अबव द प्लेन दिखेगा आपको, Yes. और नीचे वाले लेयर का जो थर्ड एटम है वो पीछे दिखेगा। Yes. तो जो अबव वाला एटम है उसको ऊपर लिया, जो पीछे वाला है उसको नीचे लिया, फिर उसको ज्वाइन किया, तो ऑक्टाहेड्रन मिल रहा है कि नहीं? हाँ. बस समझा इतना? हाँ. सुपर। अब ध्यान से देखो, तो अगर मेरा ये FCC है तो वंस अगेन द एटम्स वुड बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द Face center. face center. So let's say there is one atom at the corner here, second atom at the corner here, third इसका face center, and fourth atom मैं दूसरे यूनिट सेल के फेस सेंटर के वहां रख रहा हूं, चलेगा? Yes. दूसरा वाला यूनिट सेल जो यहां दिख नहीं रहा, समझा ना? हाँ. तो अब अगर मैं इन चारों एटम्स को ज्वाइन करूं तो क्या मिलेगा? X square. Square. स्क्वायर मिलेगा। कैसा वाला? 1 2 3 4, हाँ. 1 2 3 4 मिला यहाँ पे, 1 2 3 हाँ. 4, ठीक है। और अब मैं एक फिफ्थ एटम इसके नीचे फेस सेंटर पे विजुअलाइज करूं, हाँ. और सिक्स्थ एटम इसके ऊपर वाले यूनिट के फेस सेंटर पे विजुअलाइज करूं, हाँ. तो ये सिमिलर अरेंजमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा हाँ. है. Yeah. ठीक है। तो इफ आई ज्वाइन द 4 एटम्स विद द ऊपर वाला फेस सेंटर आई गेट Tetrahedron. एक tetrahedron. टेट्राहेड्रन। इफ आई ज्वाइन द नीचे वाला फेस सेंटर विद द 4 atoms I get another tetrahedron. Another So tetrahedron. this is how I will get an octahedron. Yes. हाँ. Yes. एंड ऑक्टाहेड्रन का जो सेंटर होगा वो मेरा ये होगा ना। Yeah. हाँ. मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं हम? OV. Center. हाँ ये ओवी है, लेकिन ये क्या है? एज सेंटर। Edge center. Yes. Yes. तो ओवीज किधर होते हैं? Edge center. एज सेंटर। और कितने एज सेंटर्स होते हैं? 12. 12। तो 12 एज सेंटर्स के ऊपर ओवी होंगे। So this is the second OV, this is the third OV, this will be the fourth OV and so on. आपके 12 एज सेंटर्स पे होंगे, राइट? Yeah. हाँ. ठीक है। एक और जगह OV होगा, सोचोगे तो सिंपल है। सब फेस सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हाँ सुपर। तो देखो ये वाला फेस सेंटर, पीछे वाला फेस सेंटर और आगे वाला फेस सेंटर, अगर इसको ज्वाइन करूं तो क्या बन रहा है? X square. Square. स्क्वायर। फिर ये फेस सेंटर और नीचे वाला फेस सेंटर अगर ज्वाइन करूं तो आई विल गेट ऑक्टाहेड्रन। हाँ. और उस ऑक्टाहेड्रन का जो सेंटर होगा ना वो क्या होगा? बॉडी Body सेंटर। center. बॉडी सेंटर। है वाह सुपर। क्या होगा? बॉडी Body सेंटर। center. तो ओवीज दो लोकेशन पे होते हैं, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ओवीज आर इन FCC, हाँ ये सिर्फ FCC के लिए बात कर रहा हूँ। इन FCC आर लोकेटेड, टेल मी, एट फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। at all the सॉरी एज क्या? सेंटर एंड बॉडी सेंटर। Edge center. all the edge centers, all the edge centers and Body Body center. Body center. body center. Fine. Yeah. Yes. ठीक है। तो अब टोटल ओवीज FCC में कितने होते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes. तो एज सेंटर्स कितने होते हैं? 12. 12. 12। और हर एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एज सेंटर का अगर One. मैंने One एज by सेंटर three. पे One अगर by स्फीयर three. रखा तो उसका कितना पार्ट एक क्यूब में आएगा? 1/3। 1/4। 1/4. क्या 1/3? 1/4. 1/3 आपका कहां पर आएगा? हेक्सागन में आएगा भाई। ठीक है। प्लस बॉडी सेंटर एक ही होता है और उसका कंट्रीब्यूशन एक 1. एक होता है। सो 12 into 1/4 is 3 and plus 1 is equal to 4. 4. 4।
बराबर. Yes. And Yes. once again, in FCC, what are the number of atoms present per unit cell? 4. 4. 4. 4. तो एटम भी 4, ओवी भी 4, एटम भी 4, ओवी भी 4. क्या समझा? एक और एटम के atom पीछे 1. एक एओ. हाँ, मतलब for every atom in FCC there will be corresponding One OV. one OV present. इसीलिए अगर n एटम्स होंगे किसी भी FCC में तो उसके OVs हमेशा एन NU. होंगे. n N. होंगे. ठीक है, and that comes the second conclusion. The number of OVs generated would be directly equal to n. समझा? Yeah. Yes. ठीक है, तो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज टीवी एंड ओवी कहाँ लोकेटेड है एंड उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है फॉर FCC यूनिट सेल. ठीक है, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज एवरीवन. मैं PDF भेजूंगा वैसे, बट ये आप स्क्रीनशॉट लेके रखो. ठीक है, हाँ. Yes sir. ओके. So now look at this diagram जो मैंने आपको बताया. This is the formation of TV, tetrahedral void, which is formed by the combination of 3 face center and 1 Corner. corner. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो 4 हाईलाइटेड रेड सर्कल्स किए हैं वो आपके 4 टीवीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग 2 बॉडी डायगोनल्स. और 2 बॉडी डायगोनल आएंगे तो और 4 टीवीज आएंगे, इसीलिए टोटल टीवीज हो जाएंगे 8. यहाँ 4 ही बताए हैं. ठीक है ना? एवरीवन. Yes sir. Yes, sir. एंड दिस इज द सेकंड डायग्राम. ब्यूटीफुल ऑक्टाहेड्रन दिख रहा है. मैंने भी Yes. अच्छा ही डायग्राम बनाया ना? हाँ कि नहीं? Yes. Yes, sir. 2 कॉर्नर एटम्स वो हो गए आपके 1 2. 2 फेस सेंटर एटम्स वो हो गए 3 4. ऊपर वाला फेस सेंटर, नीचे वाला फेस सेंटर, यही बताया था. Yes. और ये जो ग्रीनर वाला पार्ट है दैट इज बेसिकली द OV formed due to the 6 face centered atoms, meaning all the face center atoms of the cube, right? Yeah. Now you can see ये जो खाली जगह दिख रही है ये सब क्या है? Void. कौन से voids? अब void नहीं बोलना, OVs. OVs है. अब void मत बोलो, ये क्या है? OV. OVs है. समझा? और अगर आपने वो जो मॉडल देखा होगा FCC का तो उसमें जो 2 कॉर्नर एटम्स था क्या वो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा था, टच कर रहा था? नहीं. नहीं कर रहा था. 2 एटम थोड़े से दूर थे ना, तो वो हाँ. जो खाली जगह दिख रही थी FCC में Void. वही तो. अरे वॉइड नहीं है, अरे OV OV, है. OV. वॉइड नहीं है, वो OV है. क्या है? OV है. OV. समझा? Sir, मेरा Yes. Can you हाँ. explain this again? क्या एक्सप्लेन करूं? ये वापस जो लास्ट में आपने बोला ओवीज जो वाला पार्ट. FCC वाला मॉडल था, ठीक है, उसमें अलोंग द एज लेंथ द 2 कॉर्नर एटम्स वर दे टचिंग ईच अदर? No. नहीं. और वो नहीं टच कर रहे थे बिकॉज देयर वाज दिस फेस सेंटर एटम आल्सो. तो जब ये फेस सेंटर को आप देखोगे तो यहाँ पर खाली जगह दिख रही थी नहीं कि नहीं? एज Yeah. एज लेंथ के अलोंग एज सेंटर पे. तो वो जो Yeah. खाली जगह है वही तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड था. Okay, yeah, I got it. हाँ. सर समझा? टेक्निकली everyone? जो दूसरा वाला void है वो क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन है, वो कंप्लीटली क्यूब में इंक्लूड नहीं हो रहा ना, तो उसको गिन नहीं सकते ना कि इतने सारे इसीलिए तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 गिना है ना. अच्छा हाँ ठीक है ठीक है. हमने ये पूरा पूरा थोड़ी लिया है, इसका एक क्यूब में 1/4 ही लिया है. दैट इज द रीजन कंट्रीब्यूशन कम्स इनटू पिक्चर ना. हाँ got it. Fine. So now look at this diagram which I have already given in the notes. दिख रहा है नोट्स में? हाँ. पेज नंबर दिखाता हूँ. 22. 22. 22. सबको दिखा?
हाँ, ठीक है, सो ये T represents the TVs and how many T's do you see? 8 8 along the body diagonal. body diagonal. So we now know that TVs are located along the body diagonal in a FCC. There are 4 body diagonals. Every body diagonal have 2 TVs. That's the reason we have 8 TVs. Yes. ठीक है, और ये वाला जो बॉडी का सेंटर है और यहाँ पर जो एच सेंटर्स होंगे ये अपने OVs होंगे. ओवीज होंगे. करेक्ट. Yes. ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंसेस को हमें रिलेट करना है. ठीक है, बहुत आसान है. जस्ट पे अटेंशन. मुझे बताओ अलोंग द बॉडी डायगोनल व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल विद रिस्पेक्ट टू ए? √3 √3 है. along the body diagonal का लेंथ इज √3a. Yes. ठीक है, तो अगर मैं इस सेंटर से कॉर्नर तक का लेंथ पूछो आपको तो कितना हो गया? Half of root 3 है. √3/2 है. हाफ ऑफ √3a. √3a/2 होगा कि नहीं? हाँ. Yes. ठीक है, और उसके ऊपर आपका ये टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. मतलब मैं अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये मान लो आपका एक बॉडी डायगोनल है. ठीक है, ये क्या है? बॉडी डायगोनल. तो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और यहाँ पर दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. हाँ कि नहीं? Yes. यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ? √3/2 है. A √3/2. है a √3/2. हाँ बराबर. सॉरी, कंफ्यूज मत कर यार. √3a/2. Yes. ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? √3a/4. √3/4. √3a/4. हाँ. आधे का भी आधा हो जाएगा कि नहीं? Yeah. हाँ. ठीक है, सिमिलरली यहां से यहां तक का root 3a/4. √3a/4. ठीक है, तो अगर मैं पूछूं ये दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है तो क्या बोलोगे? A √3 - 2 A √3/4. तो अरे कितना हो गया फाइनली? √3/2 है. √3a/2. √3a/2 ही हुआ ना, Yes. हाँ. क्योंकि ये √3a/4 है, ये √3a/4 है, तो ऐड करोगे तो √3a/2 ही हुआ ना. Yes, sir. मतलब पहला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स अलोंग द बॉडी डायगोनल इज A root √3/2. 3a. √3a/2. √3a/2. फाइन. Yes. The distance between any two tetrahedral voids formed on any body diagonal of FCC is √3a/2. Correction in the notes. Please make this correction. √3a/2. सिर्फ एक करेक्शन है. Everyone, please do the correction. Page number 22. 2. समझा? ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नीट में आ चुके हैं. ये 4 डायरेक्ट रिलेशंस आपको याद रखने हैं. मैं आपको समझा के बता रहा हूं. आई एम नॉट टेलिंग यू टू मग अप, बट फाइनली आपको याद रखना है. ये विजुअलाइज करो कि बॉडी डायगोनल √3a होता है तो उसका आधा √3a/2 होता है. वो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू वीज का डिस्टेंस है. समझा? Yeah. Yes, sir. Okay. Now, if I consider this edge length, इसका डिस्टेंस कितना है एज लेंथ का? A. a. तो अगर मैं यहाँ पर इस एज लेंथ के अलोंग ट्रेवल करूँ तो मुझे 2 टीवीज मिलेंगे. Yes. ठीक है, एक टीवी इधर और एक टीवी इधर. हाँ कि नहीं? हाँ. तो अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरा a है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? Half A. A/2. 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 समझा? हाँ. Yes. ठीक है, तो अब मुझे बताओ a/2 और √3a/2 में कौन सा बड़ा वैल्यू है? √3a/2. है ना, क्योंकि a/2 तो 0.5a होगा और √3a/2 0.8 समथिंग 1.2 होगा. 1.7. हाँ. समझा एवरीवन? Yes, Yeah. sir. तो अगर वो पूछते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नियरेस्ट, तो कितना होगा? A/2. 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 Is the second part clear everyone? Yes.
ठीक सर है, एक बार ये वापस बताओ ना। देखो ये डायग्राम विजुअलाइज करो। ये वाला डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ आपका ए है ना, कौन सा वाला डिस्टेंस? ये देखो ये हाँ दिखा और दिखा। ये है ना। तो अब ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया कि अलोंग द एज लेंथ, एग्जैक्टली एज लेंथ पे नहीं है वो, बट उसके डिस्टेंस ए पे 2 टीवीज आ सकते हैं। हाँ ठीक है, तो पूरा डिस्टेंस अगर ए है हाँ समझ गए तो समझ गए। 2 टीवीज का नियरेस्ट डिस्टेंस a/2 होगा। हाँ ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स अलोंग द बॉडी डायगोनल पूछा तो आंसर रूट 3a/2 रूट 3a/2 a/2। और नियरेस्ट हाईलाइट करो, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टीवीज पूछा तो a/2 A/2 a/2। फाइन, या सुपर। अब हम ओवीज का डिस्टेंस देखते हैं। तो ये मेरा एक ओवी है, एक नंबर 1 दिख रहा है कि नहीं? हाँ कहाँ दिख रहा है? मैंने रब कर दिया। ये दिख रहा है 2। हाँ ठीक है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो मेरा ये लाइन होगा, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए। अब मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है? a/2 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 मैथ्स बहुत पावरफुल है तुम लोग का। और ये डिस्टेंस a/2 a/2। तो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा? a/√2 by√2 आया। हाँ ठीक है, चाहिए तो आप साइड में ना ऐसे ट्राइंगल बना दो ताकि आपको समझ में आए। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये a/2 है, ये a/2 है। तो ये मेरा OV है, OV, और ये मेरा OV है। तो OV का डिस्टेंस कितना हो गया? a/√2। सिंपल। यस तो Yeah. देखो समझ में आ गया तो मग करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल विजुअलाइजेशन से याद रख सकते हो। So point number 3 says the nearest distance between two octahedral voids is A/√2 a/√2. Justified everyone? या yes Okay. अब मेरा चौथा पॉइंट, ये मेरा OV है। अरे बॉडी के सेंटर पे OV है हाँ हाँ Yeah. और बॉडी के डायगोनल पे TV भी होता है। यस तो देखो ध्यान से, एक बॉडी डायगोनल अगर मैं FCC का देखूं तो यहाँ पे कौन है? टीवी टीवी TV। यहाँ पे कौन है? टीवी टीवी tv और इसके सेंटर पे कौन? ओवी क्या बात है, कौन? OV। ओवी ठीक है, तो अगर मैं टीवी और ओवी का डिस्टेंस आपसे पूछूं तो √3/4 कितना है। हुआ? √3 a/4 4 ना, क्योंकि आधा जो था वो √3 a/2 है। तो आधे का आधा इज द डिस्टेंस बिटवीन टीवी एंड ओवी। यस So that distance will be equal to √3 a/4. Is the fourth point justified? यस सर yes Clear everyone? या can you explain the distance between tetrahedral and octahedral void once again? See, this is the body diagonal. ये पूरा क्या है? बॉडी डायगोनल। yes तो बॉडी डायगोनल के अलोंग टीवीज तो 2 होते हैं yes और बॉडी डायगोनल का जो सेंटर है वही बॉडी का सेंटर भी होता है। yes and one OV is there परफेक्ट। अब ये पूरा जो लेंथ है वो कितना था बॉडी डायगोनल का? √3a √3a। तो उसका हाफ कितना हुआ? √3a/2 वो इतना डिस्टेंस होगा, हाँ कि नहीं? yes सॉरी, वो हाफ मतलब यहां से यहां तक होगा ना, यहां से ओवी तक। yes लेकिन मैं टीवी और ओवी का डिस्टेंस अगर फाइंड करूं तो √3a/2 का भी आधा हुआ, yes तो दैट इज √3a/4। yes नहीं sir समझा? समझ गया This distance is √3a/4. This is also √3a/4. This is also √3a/4 and this is also √3a/4. चारों को ऐड करोगे √3a मिलेगा कि नहीं? yes ठीक है, तो फाइनली ये 4 स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और याद रखने का सिंपल ट्रिक, द डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स
formed on any body diagonal. तो बॉडी डायगोनल का लेंथ आपके दिमाग में छप गया, क्या है? √3. Root 3 √3 है. है. तो दो टीवीज का जो डिस्टेंस है वो उसका आधा हुआ, कितना? √3 है by by 2. 2. √3/2. ठीक है. उसी बॉडी डायगोनल पे एक ओवी भी बैठा है. हाँ. ठीक है. तो टीवी और ओवी का जो डिस्टेंस है वो √3/2 का आधा. आधा. कितना हुआ? √3 by 4. √3/4. हो गया. फोर्थ पॉइंट याद. Yes. और जो दो टीवीज नियरेस्ट डिस्टेंस है वो ये वाला लेंथ है. देखो एज लेंथ वाले पे दो टीवीज ऐसे दिखेंगे तो उसका जो Yes. नियरेस्ट डिस्टेंस है वो कितना हुआ? A/2. A/2. और ओवी का जो डिस्टेंस है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल से समझ में आ जाएगा. Yes. A/2 तो A/√2. स्वयं Yeah. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है. तो यहां तक का जो डिस्कशन था दैट इज नाउ टू बी रिमेम्बर्ड. लॉट्स ऑफ कैमरास हैव गॉन ऑफ. नाउ आई स्टार्ट थ्रोइंग आउट. हाँ, सर आज के लिए आप अपना कैमरा ऑफ, थोड़ा डेटा प्रॉब्लम. क्या डेटा? पूरा दिन टीवी देखते रहते हो, वेब सीरीज तो देखते डेटा रहते हो, खत्म डेटा हो गया. खत्म आपने होगा रात ना. को क्लास रखा इसलिए तो. हाँ आपने क्लास रात को रखा, अभी पूरा दिन में डेटा खत्म. हाँ. तो पूरे दिन में मतलब क्या करते रहते हो इतना डेटा से? खाना Some खाओ, डेटा मत compliments. खाओ. क्या बोल रहा हूँ? हाँ. डेटा कम खाओ, खाना ज्यादा खाओ, उससे एनर्जी मिलेगी. ओके, फाइन विद दिस एवरीवन? Yes, sir. So हम्म. revise करते वक्त we just have to learn the values or even we have to go for the behind the explanation and all that. See, this explanation I have anyways not given in the notes also. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज बोलता याद रखना है. ठीक है. बट स्टिल आई गेव द एक्सप्लेनेशन सो दैट दिस विल बी रजिस्टर्ड, and once it is registered you will be able to get the values and remember the values more easily. वैसे तो मगअप करने के लिए 4 स्टेटमेंट्स में आपको डायरेक्टली बोल देता था बट नहीं बोला. ठीक है. Yeah. चलो, next is packing efficiency. So we have already discussed how to get the packing efficiency. So percentage of packing efficiency in a unit cell is equal to Volume occupied by the void upon volume of one unit. volume occupied by voids. Constituent नहीं, particles. atom. हाँ, volume occupied by atoms in the unit cell upon Volume of the unit cell. Volume of one unit cell. volume of one unit cell multiply by 100. 100. So, हाँ, can you just explain the third statement again? nearest distance between two octahedral voids. Yeah. See, मैंने ये ट्राइंगल इसलिए तो बनाया. This is one octahedral void, number 1. Oh, this one. Understood. That's fine. हाँ. Okay. So now, what is the volume of one atom if we consider as a sphere? 4/3 pi r square. 4/3 pi r Cube. 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 And how many atoms do we have in one unit cell? It's represented by what letter? Z. 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 वो Z का वैल्यू 1 2 का 4 होता है ना, तो यहाँ पर Z लिख लूंगा. Z into 4/3 pi r cube will give me the volume which is occupied by the atoms Yes. upon, if the unit cell has edge length A, what is its volume? A cube. A 4/3 cube. pi. अरे इस क्यूब का हाँ, वॉल्यूम sorry. A क्यूब. ठीक है. अब A और R का अगर रिलेशन आपको पता है तो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट A इन टर्म्स ऑफ R क्यूब कैंसिल हो जाएगा. Z की Yeah. वैल्यू आपको पता है. With that you will get the packing efficiency. So let's start with the Yes. first one, the packing efficiency in SCC. What was the answer which I have given? इसका मैंने डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है आपको. कितना आ रहा था 47.6. परसेंटेज? कितना? 47.6. नहीं, that is the void का percentage. 52.4. 52.4 is the packing efficiency. और उसमें 100 माइनस करोगे तो void का स्पेस मिलेगा ना.
Yes. ठीक है, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू एससीसी का Z कितना है 1. 1. तो 1 into 4/3 pi r cube एंड एससीसी में A और R का रिलेशन क्या बताया था A is equal to 2R. तो 2r का क्यूब इज 8 into r क्यूब हाँ. Yes. r क्यूब कैंसिल Yeah. अरे हाँ कि नहीं हाँ. Yes, sir. और 4 times 2 जाएगा तो ये आ जाएगा pi/6 into 100 जब हाँ. इसको सॉल्व करोगे तो 52.4 आ जाएगा खत्म समझा हाँ. ठीक है कई बार यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन इज द वैल्यू विदाउट Percentage. 100. परसेंटेज तो दिस विल बी इक्वल टू pi/6 फ्रैक्शन में या फिर 0.524 ठीक है Yes, sir. अब सिमिलर स्लाइड किधर गया एक सेकंड ना Similarly, I can calculate for BCC. So for the BCC, the percentage packing efficiency will be equal to what is the value of Z here? 2. 2. 2 into 4/3 pi r cube तो fix रहने वाला है Yes. upon what is the relation between A and R for BCC? A is equal to Is equal to 4R 4R. by root 3. 4R by root 3. Everyone, A is equal to 4R by root 3. तो जब इसका क्यूब करूंगा तो 4 का क्यूब 64. 64. 64 रूट 3 का क्यूब 3 root 3. 3 रूट 3 और r क्यूब इंटू 100 r क्यूब छो अरे हाँ कि नहीं Yes. Yes. तो ऊपर न्यूमरेटर देखोगे तो 8 pi/3 दिख रहा है और ये दिख रहा है 64/3 रूट 3 इंटू 100 ठीक है ये 3 और 3 कैंसिल 8 टाइम्स 8 ठीक है रूट 3 ऊपर चला जाएगा Root 3 pi by 8. तो ये हो जाएगा रूट 3 pi/8 8. इंटू 100 जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्स 68% और अगर फ्रैक्शन पूछा तो आपको ये आंसर करना है रूट 3 pi/8 समझा Yeah. Yes, sir. and third one for FCC again the percentage packing efficiency is equal to what is the value of Z 4. 4 into 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube upon what is the relation between A and R 2 root 2. A is equal to 2 root 2 R तब 2 root 2 का क्यूब अगर लेंगे तो कितना आएगा 8 R cube. 8 R क्यूब वो तो 2R का क्यूब हुआ ना 16 root 2. 16 root हाँ 2. 16 रूट 2 R क्यूब हो जाएगा इंटू 100 R क्यूब 2 4 4 16 तो ये भी 16 निकल जाएगा क्या बच रहा है Pi/3 Root root 2 pi upon 3. Pi/3 root 2. अरे रूट 2 तो नीचे ही है ना pi/3 रूट 2 इंटू 100 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 74% आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है बस खाली फ्रैक्शन अगर पूछे तो पाई के टर्म्स में pi/3 रूट 2 याद रखना है समझा हाँ. Yes. Yeah. क्लियर है यहाँ तक yes or no Yes. 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 सुपर एक बार फिर से पैकिंग एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला पहले ध्यान रख लो इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है अब जो वॉल्यूम है आपका यूनिट सेल का
वो क्या है? यूनिट Four सेल by क्या three होता है? into the volume. इट्स ए क्यूब, और ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में इट विल ऑलवेज बी z टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आपको एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में z का वैल्यू 1, 2 और 4 सब्स्टिट्यूट करना है। सो न्यूमरेटर इज सॉर्टेड, और डिनोमिनेटर में a और r का जो रिलेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं वो डाल देना है। तो अलग अलग आपके यूनिट सेल्स के लिए पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। अंडरस्टूड? Yes. So now the next topic is very simple to understand. It is nearest neighboring distance. Nearest neighboring distance. तो इसका एक सिंपल एग्जांपल, आप जहां रहते हो ऑब्वियसली आसपास नेबर्स होंगे। मुझे बताओ आपका सबसे नियरेस्ट नेबर कौन सा होता है? बाजू के घर वाला। जो आपका वॉल शेयर कर रहा होगा, हाँ. Yeah. बराबर? सो दैट वुड बिकम योर नियरेस्ट नेबर। वैसे ये एक यूनिट सेल में एटम्स की पोजीशन जहां पर है उसके हिसाब से डिस्टेंस अगर अपने को पता है तो वी कैन फाइंड आउट हु इज द नियरेस्ट नेबर फॉर अ गिवन यूनिट सेल। Yeah. गेटिंग इट? क्या बात कर रहे हैं हम? Hmm. ठीक है, तो एससीसी के लिए डिस्कस करते हैं। तो एससीसी में द एटम्स आर प्रेजेंट एट द Corner. कॉर्नर। ठीक है, अब कॉर्नर टू कॉर्नर अगर मैं बात करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू वन कॉर्नर, विथ रिस्पेक्ट टू One corner. वन कॉर्नर, उसके नेबर कौन कौन है पहले वो बताओ। बाजू के कॉर्नर। बाजू वाला कॉर्नर, और कॉर्नर अलोंग द एज, कॉर्नर अलोंग द एज, नीचे वाला. कुछ नाम है उसका? एज कॉर्नर। अलोंग द एज एक हो गया, और ओके, तो अगर मैं रेफरेंस ले लूं इस कॉर्नर का, तो इसका नेबर कौन कौन है? ये वाला कॉर्नर अलोंग द एज है, ये हाँ. समझता है? ये वाला कॉर्नर भी तो इसका नेबर है। along edge, Along the along edge body नहीं है ना. diagonal, along face diagonal. हाँ, ऐसे बात करो ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ अभी समझा? भावनाओं को समझते नहीं हो तुम लोग। हाँ, तो दिस नेबर इज अलोंग द बॉडी डायग्राम, Face सॉरी diagonal. फेस डायग्राम। फेस डायगोनल, और यहाँ से सामने वाला कॉर्नर भी तो इसका नेबर हुआ अलोंग द Body बॉडी diagram. डायग्राम। बॉडी डायगोनल, बराबर? अब मुझे बताओ डिस्टेंस अलोंग द एज कितना है? ये वाला डिस्टेंस O. कितना होता है एज का? A. ए ए। डिस्टेंस अलोंग द फेस डायगोनल रूट Root 2 2. है, रूट और डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल, Root 3 A. रूट 3 है। तो सबसे नियरेस्ट पड़ोसी कौन? Edge diagonal वाला. ए एज डायगोनल नहीं, एज, Edge. वाला. एज वाला, है ना? बस हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस एनएनडी। तो आपसे पूछा जाता है द नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस इन एचसीसी इज ए, DA. रूट 2a या रूट 3a? A. A. ऑब्वियसली ए। समझता है कि नहीं? हाँ. ठीक है, अब बात करते हैं एफसीसी। तो एफसीसी में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? Face center और corners. तो थोड़ा सोचो, विजुअलाइज करो। तो अगेन विथ रिस्पेक्ट टू वन कॉर्नर एटम, इसके पड़ोसी कौन कौन? जो ऊपर थे वो सब और face center वाले. ऊपर से वो सब Edge मतलब center. कॉर्नर वाला एटम, ये वाला कॉर्नर वाला एटम, फेस सेंटर वाला एटम, और सामने वाला अलोंग द बॉडी डायगोनल, बराबर? हाँ. Yes. ठीक है, तो ऊपर वाले सब तो है ही। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाला कॉर्नर एटम और ये वाला कॉर्नर, आर दे द नेबर्स अलोंग द No. फेस डायगोनल? आर द कॉर्नर एटम्स द नेबर्स? No, no.
Yeah. अब नेबर कौन कौन है? ये पहला वाला नेबर है, ये दूसरा नेबर है, ये तीसरा नेबर है. समझता है कि नहीं? हाँ Yeah. Yeah. तो यहाँ पर डिस्टेंस अलोंग द एज तो कितना है? A. ए. बट डिस्टेंस अलोंग द फेस डायगोनल कितना हो जाएगा? A by root 2. A by √2a का आधा ना, हाँ yes दैट इज a by √2. Yeah. हाँ. और डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल तो Root 3 है. A root 3. √3 यही रह रहा है. अब इन तीनों में सबसे नियरेस्ट, सबसे छोटा वैल्यू Face किसका? A diagonal. upon Face root 2. diagonal. a by √2. तो आंसर क्या हो जाएगा? NND in FCC is a by √2. Are you all getting it? yes Yeah. sir सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं इसमें, खाली विजुअलाइजेशन है. डू यू अग्री विथ माय वर्ड्स और नो? Yeah. Yeah. yeah Yes. ठीक है. अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आपके नेबर्स कौन कौन होते हैं बताओ? ये कॉर्नर के हिसाब से कौन कौन? खाली बॉडी सेंटर. Edge. खाली बॉडी Edge. सेंटर क्यों? Edge and body और center. बॉडी सेंटर. Edge. एज वाला कॉर्नर एटम, बॉडी सेंटर और Body डायगोनल. center. बॉडी सेंटर वाला और Face diagonal. Face फेस डायगोनल. diagonal. तीनों है. मतलब बेसिकली ये तीनों ही डिस्कशन कर रहे हैं हम तीनों यूनिट सेल के लिए, लेकिन डिस्टेंसेस अलग अलग आ रहे हैं ना, खाली एज का सेम रह रहा है. राइट? हाँ. yes ठीक है. तो इस केस में डिस्टेंस अलोंग द एज कितना? A. a यही है. डिस्टेंस अलोंग द फेस डायगोनल A root 2. 2A. और डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल Root 3A by 2. Root 3a by 2. आधा ऑफ द बॉडी डायगोनल √3a by 2. 2 तो सबसे छोटा Root 3a by 2. Root 3A by 2. √3a by 2. क्लियर? yes ठीक है. अब याद रखने का सिंपल ट्रिक है. देखो SCC में द नियरेस्ट नेबर इज अलोंग द edge edge because the corners are touching. FCC में the nearest neighbor is along the Face diagonal. face diagonal आधा Hmm. face diagonal is the value. yes और BCC में the nearest neighbor is Body along the body diagonal. Body diagonal. along the body diagonal, मतलब आधा of the body diagonal length which is √3a by 2. याद हो गया? हाँ. अब इतना बड़ा डिस्कशन, लेकिन अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? सिंपल है कि नहीं? yes Yes. a by √2 and √3a by 2, वो भी वैल्यूज आपको पता है. इसलिए फेस डायगोनल √2a होता है, बॉडी डायगोनल √3a होता है. ये दोनों चीज बहुत जगह काम आई है अपने को. राइट? yes Yeah. फाइन. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने 3 टॉपिक्स कवर किए आज. मैं एक बार क्विकली बता देता हूं आपको, ध्यान देना. The first part was relation between A and R. So to get A and R relation for SCC, you have to consider the 2 atoms along the Edge. edge. Along the edge. So along the edge, the 2 atoms, when they are touching each other, the relation between A and R becomes A is to R. A is to R. For FCC, you have to consider the atoms along the Face diagonal. face diagonal, which is equal to √2a, which in turn is equal to 4r. तो a और r का रिलेशन मिल गया. वही चीज हमने पैकिंग एफिशिएंसी में भी यूज किया, वही चीज हमने NND में भी यूज किया. राइट? आर यू गेटिंग द कनेक्शन? हेलो? Yeah. एंड BCC में the atoms touch along the Body diagonal. body diagonal, and body diagonal का length is √3a. √3a. So √3a is equal to 4r. खत्म. Then the TV and OV का लोकेशन in CCP और FCC. बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये भी. टीवी में अगर हम कंसिडर करें तो 3 फेस सेंटर एटम्स और एक कॉर्नर वाला एटम एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है, which actually is present along the Body diagonal. body diagonal. And along the body diagonal there are 2 TVs generated.
ये पूरा रिलेशन के बाद फाइनली आपको कंक्लूजन क्या याद रखना है कि फॉर एवरी एटम देयर विल बी 2 TVs, तो n एटम्स होगा तो 2 2n n TVs के बराबर होगा. Similarly, OVs are present at the H centers and at the body का सेंटर. सारे H सेंटर बॉडी सेंटर पे रहता है. कंट्रीब्यूशन मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर हमने डिराइव किया कि टोटल OVs 4 होते हैं और FCC में एटम्स भी 4 होते हैं. तो हर एटम के पीछे एक OV जनरेट होता है. क्लियर? Yeah. Yeah. Yes. देन ये वाला डायग्राम बेटर समझने के लिए ये दोनों चीज. And then the distance between TVs, OVs, TV and OV in FCC, उसके 4 statements, very, very important. And this is to be remembered with proper understanding of the concept. Then the packing efficiency, the simplest part, you have to just substitute Z and A and R का relation. You'll get the packing efficiency for SCC, BCC and FCC. And finally, the nearest neighboring distance concept, which is for the SCC, FCC and BCC along the edge, along the phase diagonal and along the body diagonal. Phase diagonal का आधा कर लो, body diagonal का आधा कर लो, आपको बाकी दोनों के आंसर्स easily मिल जाएंगे. Clear? Yeah. Okay. Any doubts up till here? Any doubts? No. Okay.